And inside that, और देह के अंदर there's another circle, एक और चक्री है which is the spirit. जो कि आत्मा है, And then inside is another ring, और उसके अंदर एक और छल्ला है that is soul. जो कि प्राण है। The body has 5 outlets. और आप जानते हैं कि शरीर में 5 दरवाजे होते हैं। See, देखना, taste, चखना, feel, स्पर्श करना, smell, सूंघना and hear. और सुनना। That's in the body. ये शरीर के दरवाजे हैं। Similarly, the spirit has 5 doors. और उसी प्रकार से आप पाएंगे कि आत्मा के भी 5 दरवाजे हैं। Memory, यादाश्त, let's label it. आइए इसको लेबल करें। Conscience, विवेक, this is affections. और ये लगाव है। This is reasoning. और ये तर्क वितर्क है। Somebody help me with the next one. इमेजिनेशन, Yes, imagination. कल्पना। Imaginations. Then comes the soul, और फिर आता है प्राण, which has only one gate, जिसमें केवल एक ही द्वार है, which is called self-will. जिसे कहते हैं स्वयं की इच्छा। And faith opens it और विश्वास इस द्वार को खोलता है for God. खुदा के लिए, Unbelief opens it for the devil. और अविश्वास जो खोलता है दरवाजे को शैतान के लिए। Now, this is in general what the prophet taught us. और ये जनरल में वो चीज है जिसको कि नबी ने हमें सिखाया। Made the 3 rings, 3 छल्लों को बनाया, the body, the spirit, and the soul. देह, आत्मा, प्राण। Let's study it a little bit now from the message. आइए इसको संदेश के मार्फत थोड़ा सा अध्ययन करें। The body, the spirit, and the soul. Yes? देह, प्राण, You can see this. आप इसको देख सकते हैं। Now, I'm going to read out for you some things. मैं आपके सामने कुछ चीजों को पढ़ूंगा। We have this diagram with us. हमारे सामने ये चित्र है। After making these 3 rings, the prophet says, इन 3 छल्लों को बनाने के बाद नबी कहते हैं, that's 3 rings, 3 circles. ये 3 छल्ले हैं, ये 3 गोले हैं। Now that's you. अब ये जो है ये आप हैं। This is you. ये आप हैं। You means आप कैसे मतलब? you, the man. आप जो शख्सियत हैं, मनुष्य। You, the man, is this triune being. आप जो मनुष्य हैं ये ट्रायून बीइंग हैं। Triune, 3 in 1. 3 एक में। This is called a triune being. इसे कहते हैं एक त्रिएक मनुष्य। That's you. ये आप हैं। You are 3, आप 3, you are 1. फिर भी आप एक हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? You have a body, आपकी देह है, you have a spirit, आपकी आत्मा है, and you have a soul. और आपका प्राण है। But then he also says, लेकिन आप देखिए आगे वो क्या कहते हैं। now that's you. अब ये आप हैं। Paragraph 103. 103 अनुच्छेद। That's God. ये खुदा है। God in a Trinity is one. खुदावन 3 में होते हुए एक हैं। And without a Trinity, He's not God. अब ये बगैर त्रिएकता के वो खुदा नहीं है। He can't be manifested any other way. किसी और रूप में वो प्रकट नहीं हो सकते। You mean this is God? आपका कहने का मतलब ये खुदा है? Yes. Now this is something to understand. अब ये कुछ बात समझने योग्य है। You have a body, आपकी देह है, you have a spirit, आपकी आत्मा है, you have a soul. और आपका प्राण है। This is also God. ये खुदा भी है। God had a human body, खुदा की इंसानी देह थी, which is called Jesus. जिसे कहते हैं यीशु। God had a spirit, खुदा की आत्मा थी, which was the spirit of Christ. जो कि मसीह की आत्मा थी। Jesus is the body, the son. यीशु देह है, जो कि पुत्र है। Inside was the spirit, और उसके अंदर आत्मा था, and that soul और वो प्राण was God Himself. वो खुदा स्वयं पिता थे। The nature of God खुदा का स्वभाव inside the Son.
पुत्र के अंदर। I think you can understand it. मैं सोचता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। That soul which was in Christ, वो प्राण जो कि प्रभु यीशु मसीह में था, that nature of that spirit, उस आत्मा का जो स्वभाव है, was God himself. वो खुदा स्वयं था। That is why Jesus was not just human. इसलिए प्रभु यीशु मसीह केवल इंसान ही थे, He was perfectly God. वो सिद्धतापूर्ण खुदा थे। That nature of God was in him. वो खुदाई स्वभाव उनके अंदर था। Now, if you read the message token, we are going a little deeper, but I didn't intend to, but let me still say it. और अगर आप उस टोकन वाले संदेश को पढ़ेंगे, हम थोड़ा गहराई में उतर रहे हैं, मेरा मकसद तो नहीं था, लेकिन जैसा चल रहा है, The difference between animal जो फर्क है जानवर में and human. और इंसान के बीच में, Animal has no soul, जानवर का कोई प्राण नहीं होता, but humans have a soul. लेकिन इंसान का प्राण होता है। So if animal have a soul, तो जब जानवर का प्राण नहीं होता, he's just two rings. उसके केवल दो छल्ले हैं। Bears, elephants, camels, tigers, elephants, lions, they are just body and spirit. जो शेर है, जो भालू है, जो कि जिराफ है, जो कि तमाम जानवर उठा के देख लें, उनके केवल दो ही चक्रियां हैं। They don't have a soul. उनका प्राण नहीं होता। They don't have a nature to be born again. उनके पास कोई स्वभाव नहीं है नए जन्म का के लिए, born Please again। try to understand. They don't have a soul to be changed. उनके पास कोई प्राण नहीं है जो कि बदल सके। That's why there's no new birth for animals. इसलिए जानवरों के लिए कोई नया जन्म नहीं है। Is that much clear? क्या इतनी बात स्पष्ट है? Who was serpent? सर्प क्या था? Now if you read the message, अगर आप संदेश को पढ़ें, can you get me that quote that serpent almost had a soul? You can read that. आप उस हवाले को पढ़ सकते हैं जहां पे नबी कह रहे हैं कि सर्प के पास लगभग प्राण था। But you know he was a serpent. लेकिन आप जानते हैं वो सर्प था, And being a serpent, he was an animal. और सर्प होने के नाते वो एक जानवर था। So he doesn't have actually a soul. तो वास्तविकता में उसके पास प्राण नहीं था, Almost had a soul. लगभग प्राण था। So is there a new birth? A change for serpent? तो क्या कोई नया जन्म, एक बदलाव सर्प के लिए है? Is there a new birth for elephant? क्या हाथी के लिए है? For dogs, cats, maybe? कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए शायद No. नहीं। There's no new birth for animals. जानवरों के लिए कोई नया जन्म नहीं है। Point number 1. पहला पॉइंट, You got it? This is the quote. Yes. Now the next one to the human being was the serpent. अब इंसान से बिल्कुल जो इंसान के बिल्कुल पास जो चीज है वो है बस। The Bible said he was the most subtle of all the beasts of the field. और बाइबल बताती कि पृथ्वी के जानवरों में, पशुओं में सबसे ज्यादा धूर्त था। That's right. Thank you. Smarter. He almost had a soul. बहुत ज्यादा चालाक था, उसके पास लगभग प्राण था। He could think. वो सोच सकता था। That's why he had reasoning to reason with Eve. इसलिए उसके पास तर्क था कि वो तर्क कर सके हव्वा के साथ। Note. ध्यान दीजिए, Spirit has reasoning. आत्मा में तर्क वितर्क है। That's why he reasoned with the word. इसलिए उसने वचन के साथ, कलाम के साथ तर्क वितर्क किया। Eve didn't understand one thing. हव्वा एक बात नहीं समझी, I am a higher category than this man. मैं इससे एक ऊंची श्रेणी की हूं। Because she had a control tower to control that reasoning. क्योंकि उसके पास एक कंट्रोल टावर था, नियंत्रण केंद्र था, जो कि उस तर्क वितर्क पे नियंत्रण रखे। Yes, the reasoning would say, हाँ, तर्क वितर्क तो कहे कि फल देखने में बहुत अच्छा है, but the control tower would say, लेकिन नियंत्रण केंद्र कहेगा God's word is final. खुदा का वचन निर्णायक है। If he said don't eat it, अगर उसने कहा नहीं खाना, we shouldn't eat it. हमें इसको नहीं खाना है। Let me turn and go. मैं यहां से मुड़ती हूं, वापस जाती हूं। But what happened? लेकिन क्या हुआ? She opened that gate for just a little time to that unbelief. उसने थोड़े समय के लिए उस दरवाजे को अविश्वास के लिए खोल दिया। What happened next? अगली चीज क्या हुई? She paralyzed the control tower in her.
उसने उस नियंत्रण केंद्र को जो उसके अंदर पाया जाता था उसको लकवा पड़वा दिया। What happened? क्या हुआ? Because of that paralyzed soul, उस पैरालाइज प्राण के वजह से now she was nothing but an animal. अब वो कुछ और नहीं लेकिन एक जानवर बन गई। She just went out with that serpent. वो सर्प के साथ चली गई। Why? क्यों? Now these are the teachings and deep teachings which are to be taught from the message. और ये हैं वो शिक्षाएं और गहन अध्ययन और शिक्षाएं जिसको कि संदेश के मार्फत सिखाया जाना चाहिए। Why does the message always teach to run away from unbelief and not stand there? क्यों संदेश हमेशा हमें सिखाता है कि अविश्वास से दूर भागो और वहां खड़े मत रहो। The Bible says even to shun the appearance of evil. यहां तक कि उस दुष्ट का जो देखना भर है उसके लिए भी वहां से हट जाओ। Why did Nellie Sanders fall? नेली सैंडर क्यों गिर गई? She just stood for a moment. एक मिनट के लिए वो खड़ी हुई थी सिर्फ। Hear that music उसने सुना उस संगीत को and saw the dance floor. और उस नाचने वाले जगह को उसने वहां पे देखा, फ्लोर That को was देखा। just enough इतना ही काफी था for see and hear to enter and paralyze her soul. कि देखने के द्वारा और सुनने के द्वारा वो उसके अंदर प्रवेश करे विश्वास और उस कंट्रोल टावर को पैरालाइज कर दे। The next thing, अगली चीज, when she came to her senses, she was in the arms of a boy dancing. वो किसी लड़के की बाहों में थी, नाच रही थी। We're talking about Nellie Sanders. हम बातचीत कर रहे हैं नेली सैंडर्स की। Could there be a Nellie Sanders sitting here? क्या कोई नेली सैंडर यहां भी बैठे हो सकती है? Could you like Nellie Sanders? क्या कोई भाई जो है बर्ताव कर सकता है नेली सैंडर की तरह जो यहां बैठा हो? Of course, it's a woman example, but that's just a spirit that acts anywhere, anytime. हाँ, ये एक बहन को लेकर उदाहरण है, लेकिन ये एक ऐसी आत्मा जो कई भाइयों में भी और बहनों में भी काम कर सकती है। People imagine things and the devil makes them imagine things which they are not. शैतान विवश करता है लोगों को सोचने कल्पनाओं में ले जा करके जो चीज है नहीं उनके बारे में सोचवाता है। फेरी टेल शादियां सोचते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, परियों की कहानियों को सोचते हैं कि मेरी ऐसी शादी होगी, ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। परियों जैसी शादी के लिए पहले परी तो बन जाओ। समझ मारी है? सोचते घर बैठे धन आ जाएगा, जैसे उसके कहानी में हुआ था, कोई किसी के साथ हो भी जाता है। कुछ हैं दुर्लभ ऐसे जिनके साथ ऐसी हो जाती है। फिर मेरी शादी एक ऐसे से होगी, फिर वो आएगा, फिर वो मुझे ले जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा ऐंठूंगी, फिर वो कहेगा प्लीज, और ऐसे करके वो मुझे मेरे घर से उठा के ले जाएगा, ले जाऊंगी। क्या होगी शादी? रह कहां रहे हैं? हमारे जगह पर रह रहे गली में, चल मैं गली का नाम नहीं बोलूंगा, रह रहे गली में, शादी पिक्चर कर रहे हैं छाबड़ा एंड सन्स वाली। भाई शादी वही तो होगी जो तुम हो। समझ, जो हकीकत है उस पर क्यों नहीं विश्वास करते? शादी सोच रहे हैं अपनी जाने कहां पे। इसी काल्पनिक अय्यामों में रहने के कारण आजकल का एक बड़ा तबका जवान का सही उम्र पे सही फैसले नहीं ले पाती। उम्रें निकल जाती हैं, शादियां नहीं होती। जिस उम्र पे 2 बच्चे या 3 बच्चे हो के सेटल हो जाना चाहिए, बैठे हैं क्योंकि दिमाग कहीं और है। लड़के का भी और लड़की का भी अय्यामों में सोच रहे हैं जाने कौन सी शादी। भाई हां, एक शादी है, वो तो खैर आप सबके लिए है, वो मसीह और उसकी दुल्हन, वो तो फेरी से भी बढ़कर होगी। अब जैसे कहानियां शेयर हुई, वो लड़की अपना वस्त्र तैयार करते कि फिर वो भागती भी गई, इट्स ऑल ओवर नाउ हनी। तो अब यहां हर लड़की सोचती है कि मेरा कोई शिकागो वाला बॉय मिलेगा मुझे। अब ऐसा शिकागो का बॉय मिले तो उसके लिए भैया दुआ करो। समझ मारी है? लेकिन आपको मैं बताऊं, जिससे भी खुदा ने चाहा आपकी शादी हो, वो आपका शिकागो बॉय ही है। आमीन। चलो वो हनी, अब मैं तुम्हें यहां से ले जा रहा हूं अपने घर में,
अब घर में जब ले जाए तो घर में घुसे तो वो 2 कमरे का घर, अब बताइए, वॉट एवर इट इज, लेट्स बिहेव नॉर्मली एंड कम बैक टू आवर सेंसेस। आइए हम नॉर्मल बिहेव करें और अपनी सेंसेस में लौट के आ जाएं कि हम हैं कौन और हम कहां अपने कामों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या नहीं। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, कुछ कारण है, कुछ देख रहा हूं मैं यहां पर भी। उम्रें निकल जाती हैं, शादियां नहीं हो पाती क्योंकि दिमाग में एक फेरी टेल बैठी है। कुछ अंदरूनी रिजर्वेशंस और डिमांड्स हैं, मेरी ये डिमांड्स पूरी होंगी। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हर डिमांड नहीं पूरी हो सकती। इनफैक्ट आप भी पूरी डिमांड वाली नहीं हैं और आप भी पूरे डिमांड वाले नहीं हैं। इन फिगर्स को समझें और जब आप रियलिटी में आए, मन में हसीन ख्वाब चल रहे हैं। रात में जब मीटिंग के बाद जाते हैं तो एक ख्वाब देख लेते हैं, फिर वह ख्वाब इतना स्ट्रांग है कि पूरा हफ्ता उस ख्वाब में निकल जाता है। ट्यूसडे की मीटिंग उन ख्वाबों में, थर्सडे की मीटिंग उन ख्वाबों में, संडे की मीटिंग उन्हीं ख्वाबों में, क्योंकि हकीकत में नहीं आ पाए कि बेटे शादी के बाद बच्चे होंगे, उसके बाद आएगा बिजली का बिल, उसके बाद आएगा पानी का बिल, उसके बाद आएगा ट्यूशन फीस, उसके बाद बाहर की ट्यूशन और स्कूल वाली ट्यूशन की फीस। उसके लिए क्या करोगे? बैठ के खूबसूरतियां ही निहारते रहोगे, हैंडसमनेस ही देखते रहोगे, या हकीकत पे आओगे? यह है कारण, सच है। यह है कारण कि आज की पीढ़ी बर्बाद कर दी हॉलीवुड ने, मूवियों ने, इन तमाम चीजों ने, क्योंकि उन्होंने वही सोचा। फिर वो कार से उतरी, अरे कार तो हो उतरने के लिए, कोई नहीं मारुति 800 से मैं उतर के दिखाऊंगी। अरे भाई, जो मूवी में कार थी वो थोड़ी ना कार है तुम्हारे पास यार। तो जैसी है वैसे अपने आप को वैसा समझो। बाइबल में लिखा भी है कि अपने आप को उससे कहीं ज्यादा मत समझो जो हो। समझ मारी है? जब ऐसे फैंटास्टिक दुनियाओं में जीना शुरू कर देते हैं तो हकीकत से अपने क्या कहेंगे स्पर्श को खो बैठते हैं, जिसके कारण कई बार गलत फैसले भी हो जाते हैं। चलिए वो सब नहीं हुआ तो खूबसूरती पे, बड़ी खूबसूरत है यार, कुछ हो मुझे, दुनिया में तो ही चल रहा है, कुछ हो मेरी शादी इसी से होगी। वो क्या बन जाते हैं? स्टॉकर। हम वो नहीं चाहते कि उससे शादी करें, लेकिन ये स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, फिर फाइनल उसे गोली मार देते हैं, फिर खुद भी जेल जाके फांसी के फंदे में लटक जाते हैं। क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है? अरे भाई, जहां खुदा ने लिखी है वहीं तो होगी, है या नहीं? आमीन। फंटाजिया वर्ल्ड में जीते जीते कई बढ़िया काम होते हैं सामने, थालियां आती हैं सामने से और अगले को दिखाई नहीं देता। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मेरी आंखों के सामने आई, निकल गए। मालगाड़ी है भाई, रुकती थोड़ी ना है अगले। और क्योंकि ऐसा होता है, सही टाइम पे सही फैसले नहीं हो पाते, चाहे जॉब को लेके, चाहे शादी को लेके, चाहे नौकरियों को लेके। तब जब सफर करते हैं, अय खुदा रहम कर, वहां पे भी बेचारे क्या बोले, अपना कितना प्यारा खुदाबंद है, वो वहां पर भी रहम करते हैं। आमीन। लेकिन समस्या और परेशानियां उठानी किसे पड़ती हैं? देखिए क्या हुआ हव्वा के साथ। शी लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद दिस वर्ल्ड। इस संसार के साथ उसने संपर्क खो शी दिया। फॉरगॉट दैट शी इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वो भूल गई कि वो खुदा की बेटी है। फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के लिए भूलना पूरी मनुष्य जाति के लिए मृत्यु ले आई। बिल्कुल सच है। और थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी रही, पता नहीं क्यों, उस आदमी के साथ। वो मुस्कुराया मेरी तरफ देख के, पता नहीं क्या हो गया मुझे। जिस नबी ने बोला राफ के केस में, ही हग्ड हर एंड शी वाज फायर्ड अप। दैट्स द नेचर ऑफ अ सेक्सुअल मैन एंड वुमन दैट जस्ट हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे। आप पाते हैं कि इस प्रकार संसार में होता है कि एक औरत को एक आदमी जब
गले लगाता है और ये तमाम सेक्सुअल मामला चालू हो जाता है। ये सारी चीजें शुरू हो गई, वो जल गई अंदर से, मतलब जल से मतलब है शी गॉट फायर्ड अप, इमोशंस में बहुत हाई पहुंच गई, और फिर बस दुनिया में जो हो रहा है वो हो रहा है। आगे मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं। Why does this happen? Now he is explaining it through this. अब नबी इस चित्र के मार्फत इस बात को समझा रहा है, ऐसा Oh, क्यों हो it's रहा a है। big teaching. ये बहुत बड़ी शिक्षा है I know we'll not be able to finish it today, but maybe next Tuesday. और मैं जानता हूं कि आज इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, इस लेकिन शायद- तीन चित्रों के तीन गोलों का सेकंड राइट से क्या लेना देना है? Amen! इन तीन गोलों का थंडर्स, प्लेग्स, वाइल से क्या लेना देना है? ट्रम्पेट से हैं? Amen! है भैया। जो आप बैठ के यहां समझा रहे हैं डिटेल में चर्च को अपना ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करके, बड़ी इंपॉर्टेंट टीचिंग है भाई। मैं तो आज हिल गया। Amen! हालेलुया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट Amen. टीचिंग है। अब देखिए नबी के शब्दों को ही पढ़ता जाऊंगा, वो कई शब्द तो इतने खुले हैं कि वो अपने आप समझाएंगे आपको। आइए हम मदद लेते हैं इस संदेश की। Amen! दैट्स गॉड, ये खुदा है and neither can you be manifested without being the Trinity person that you are. और आप भी प्रकट नहीं हो सकते जब तक कि इस कि आप भी एक त्रिएक पुरुष के रूप में ना हो। यस, बॉडी, स्पिरिट, सोल, देह, आत्मा, प्राण, विदाउट either one of them you are not complete. इनमें से अगर एक भी ना हो तो आप पूरे नहीं हैं। See, देखा आपने? you have a soul,